So let's call upon the universe. Join your hands, close your eyes. Take a deep breath in. अपने आप को present moment में लाओ so that we focus on what we have come here for. Take a deep breath in and out. Take one more deep breath and release. Take one more deep breath and feel the magical air you breathe, जो हमको फ्री में मिल रही है। उसके लिए दिल से शुक्रिया करो। Thank you, universe, for this divine time. Thank you, universe, for this beautiful evening where we come together after the whole day's work to understand what gratitude is. Bless each participant with all their desires, whatever they need and whatever is good for them. Bring us into the practice of gratitude that we start feeling happy and bring that happiness into our life. That is the first thing that is required in my life. Thank you for giving us that abundance of happiness so that I know that my real happiness is deep within me inside. And when I remain happy, I attract that to me, and that brings more different, abundant things to me. Thank you, universe, for making me the channel of blessings to enlighten other people's life, so they enlighten further and help others to know what their real magic lies in gratitude. Thank you, thank you, thank you. I'm sharing the book. Yes. You're able to see the cameras, sorry, the screen. Please let me know and open your cameras. Yes, ma'am. I want interactive session. I don't want, even if you are wearing a t-shirt and a pajama, it's okay. But the more I'm able to see you, I feel connected. Otherwise, I do not feel connected. So please open your cameras. Yes. So yesterday we learned about how to write our dreams. We wrote our dreams कि हमको life में क्या क्या चाहिए. And if you're ready to begin the most exciting and the thrilling adventure you have been on, then today is that day. आज हम वो सीखेंगे कि how हमने जो कल जो ड्रीम्स लिखी है उसके अंदर पावर कैसे डालना है. पावर यानी एनर्जी. हम जब एनर्जी डालेंगे तो ही हम हमारे ड्रीम्स को अचीव कर पाएंगे. And remember, today we are going to change our brain patterns, neuro patterns, क्योंकि हम जो है thoughts, memories, beliefs के थ्रू हमारा वजूद बनता है. हम जो है as a human being है, it is all because of our thoughts, जो हमारे अंदर मेमोरीज होती है और जो बिलीफ, यानी हम जो थिंक करते हैं हम उसको बिलीव बनाते हैं और जो बिलीव हमारी मेमोरीज बन जाती है उसी के थ्रू हम वर्क करते हैं. उसी के थ्रू हम वर्क करते. सो टुडे वी आर गोइंग टू पुट पावर, टुडे वी आर गोइंग टू पुट एनर्जी इनटू व्हाट वी नीड फॉर आवर ड्रीम्स. और वो किससे आएगी? काउंट योर ब्लेसिंग्स. तो हमने जितने भी पास्ट में हमारे पास चीजें रही है, देखो फिर उसमें रोशनी आ जाएगी. द पिक्चर इज शोइंग कि हाउ लाइट इज कमिंग इनटू योर लाइफ इफ यू प्रैक्टिस दिस. अब प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? आप थोड़ा देर प्रैक्टिस करोगे तो आप
थोड़ा रिजल्ट देखोगे। आपके ऊपर डिपेंड होता है कि मुझे मेरे ड्रीम्स कितने जल्दी चाहिए। अगर मुझे मेरा ड्रीम जॉब चाहिए, या मुझे मेरा बड़ा घर चाहिए, या मुझे मेरा प्रमोशन चाहिए, या मुझे मेरा रिलेशनशिप अच्छा चाहिए, उसके ऊपर डिपेंड होता है कि आप कितनी प्रैक्टिसेस करते हो। आप जितना ज्यादा करोगे उतना जल्दी आप रिजल्ट देखोगे। तो आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, आप थोड़ा रिजल्ट देखोगे, आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप ज्यादा रिजल्ट देखोगे। So when I started counting my blessings, my whole life turned around. What do you mean by blessing? Willie Nelson, singer, songwriter. So Willie Nelson is saying कि जब मैंने मेरी blessings को काउंट करना शुरू किया कि यार मेरी लाइफ में कितनी सारी चीजें हुई है पास्ट में, you will see, you will see that your whole life has turned around. Okay? She wants to see me. Yes. Hi. So when I started counting my blessings, my whole life turned around. Okay, see how children bring smile to our faces. You will have heard people say to you, say to that, count your blessings. And when you think about the things you are grateful for, that's exactly what you are doing. But what you may not have realized is that counting your blessings is one of the most powerful practices you can ever do. And it will magically turn your whole life around. But जब आप अपनी लाइफ के ब्लेसिंग्स को गिनना शुरू करोगे, हमको अभी ये जो पहले 12 प्रैक्टिसेस है, कल हमने पढ़ा था कि हमारे जो पहले 12 लेसन्स होने वाले हैं, दे आर ऑल प्रैक्टिसेस अबाउट द पास्ट। यानी पास्ट में हमने जो जो हमारे पास है, हमारे पास था, उसके लिए जब हम ग्रेटफुल हो जाते हैं, यू विल सी दैट इट विल मैजिकली टर्न योर होल लाइफ अराउंड। सो व्हेन यू आर ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स यू हैव, नो मैटर हाउ स्मॉल दे मे बी, you will see those things instantly increase. If you are grateful for the money you have, however little, मेरे पास आज सिर्फ 100 रुपए है, इट्स ओके यार, मेरे वॉलेट में सिर्फ 100 रुपए है, बट उस 100 रुपए से कम मैं कल का दूध ला पाऊंगी, या मैं किधर खाना तो खा पाऊंगी। You will see money magically grow. If you are grateful for a relationship, even if it's not perfect, you will see it miraculously get even better. आप ध्यान करो, आज का जो ये चैप्टर है वेरी इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर ग्रेटफुल फॉर द जॉब दैट यू हैव, even if it's not your dream job, things will begin to change so that you enjoy your job more, and all kinds of opportunities for your work will suddenly appear. तो अगर आपके पास अभी जो करंट जॉब है, अगर वो आपका ड्रीम जॉब नहीं भी है, आप उसके लिए थैंकफुल हो जाते हो, यू विल स्टार्ट गेटिंग अपॉर्चुनिटीज सडनली। क्योंकि अगर अगर आज आपकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, अगर आप ऐसा बोलते हो यार मेरे पापा तो नेगेटिव है, मेरे मेरे आजू आजू बाजू में सब वही लोग हैं जो बहुत ज्यादा नेगेटिव है, यार मेरा तो पैसे की लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, या मेरी जॉब अच्छी नहीं चल रही है, रिमेंबर यू हैव क्रिएटेड इट। इट इज ऑल बिकॉज यू हैव नॉट बीन थैंकफुल फॉर ऑल दैट यू हैव। आपको बहुत थैंकफुल होना है जो भी करंटली आपके पास है। The flip side is that when we are not counting our blessings, we can fall into the trap of unintentionally counting negative things. And we count negative things when we talk about the things we don't have. And we count negative things when we criticize or find fault with other people. And when we complain about traffic, waiting in lines, delays the government, नॉट इनफ मनी और द वेदर। हम बार बार, आपने देखा होगा, लोग इकट्ठे होते हैं और फिर अरे गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही है, अरे ये लोग ऐसे नहीं कर रहे हैं, अरे वो बाजू वाले का नेबर इतनी बड़ी कार लेके आया है, पता नहीं कहाँ से, उसके पास तो ब्लैक के ही पैसे आते हैं। कोई लड़की को शॉर्ट्स में देख लिया, वन पीस में देख लिया, अरे ये लड़की तो देखो ऐसे ही घूमती, वाई आर यू वरिड? आप क्यों वरिड हो दूसरे लोगों का नेगेटिव देखने में, या आप आपका फोकस आपको जो चाहिए उसमें रखो। मुझे क्या चाहिए, मैं क्या चाहता हूं, या मैं क्या चाहती हूँ, मुझे जो चाहिए, आई विल वर्क ऑन दैट, आई विल लुक ऑन दैट। आई एम नॉट गोइंग टू फोकस ऑन मेरा नेबर क्या कर रहा है, मेरे बाजू वाले क्या कर रहे हैं, मेरे ऑफिस में कलीग्स क्या कर रहे हैं। आई विल फोकस ऑन व्हाट आई वांट। आई एम नॉट गोइंग टू क्रिटिसाइज, आई एम नॉट गोइंग टू कंप्लेन।
कि माई नेबर्स आर डूइंग दिस, मेरी सोसाइटी में ये नहीं हो रहा है, मेरी सोसाइटी में अच्छे लोग नहीं है, मेरी सोसाइटी में खराब लोग हैं, मेरे कलीग्स खराब है, मेरे ये, आई एम नॉट गोइंग टू कंप्लेन. Because the moment you start criticizing, the moment you bring that thought also in your mind, you are increasing negative things. But जब आपका focus count of blessings, यार मेरे पास जॉब है, मेरा जॉब इतना अच्छा है, मेरा ऑफिस इतना अच्छा है, आई कैन ट्रैवल, मेरे पास पैसा है कि मैं इतना ट्रैवल तो कर पाती हूँ, you will see, you will start getting more and more of that. अगर आपको ज्यादा चाहिए, start counting your blessings. So when we count negative, those things increase too. तो आप किसका पलड़ा ज्यादा बैलेंस कर रहे हो, आप नेगेटिव का कर रहे हो या पॉजिटिव का कर रहे हो, ये आपको ध्यान करना है. बट ऑन द टॉप ऑफ दैट, एवरी नेगेटिव थिंग वी काउंट, वी कैंसल आउट आवर ब्लेसिंग्स. आपने एक कंप्लेन की, उसके पीछे आप 10 कदम पीछे चले गए आपकी ड्रीम के पास पहुंचने के लिए. We cancel out blessings that were on their way. I have tried both. Count your blessings and counting negative things. I can assure you that counting your blessing is the only way to have abundance in your life. Assure kar rahe, even I guarantee you 101, 1001, 2001% that अगर आपका पास्ट के लिए आप काउंट योर ब्लेसिंग्स रोज करोगे, आप देखोगे कि आपके पास हर चीज में इंक्रीज एंड अबंडेंस हो रहा है. बेटर टू लूज काउंट while नेमिंग योर blessings than to lose your blessings to counting your troubles. ओके, हियर ही सेइंग कि अगर आप काउंट कर सकते हो तो ज्यादा ब्लेसिंग्स काउंट करो देन यू आर काउंटिंग योर ट्रबल्स. बिकॉज जब हम फोकस हमारा ट्रबल पे लाते हैं, हम और ज्यादा ट्रबल्स को इनवाइट कर रहे हैं, आजा 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 मेरी जिंदगी में. और जितना आप पॉजिटिव को बोलते हो, आप जितना बोलते हो कि नहीं यार ठीक है, अगर ये ऐसा भी हो रहा है, इट्स ओके विथ मी, इट्स ओके, अगर ये चीजें भी हो रही है, इट्स ओके, आई एम गोइंग टू लुक इन टू वॉट आई हैव. चलो मेरे पास जॉब तो है, चलो मेरे पास फैमिली तो है, चलो मेरा जॉब इतना अच्छा तो है, ये वाली पोजीशन तो है, चलो मेरी सैलरी तो टाइम पे आती है. जब आपका फोकस उस चीजों पे चले जाता है जो आपके पास है, जो आपके पास नहीं है, वो इट स्टार्ट्स इरेजिंग आउट. सो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, एज और एज अर्ली एज द डे यू कैन, काउंट योर ब्लेसिंग्स. You can write out your list by hand, type it in the computer or use a special journal. हम लोग बोलते हैं राइट इट इन योर जर्नल, बिकॉज जब आप हाथ से लिखते हो, आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन होता है एंड आपका ब्रेन रिवायर होता है. So today you make a simple list of 10 blessings in your life you're grateful for. And when Einstein gave thanks, he thought about why he was grateful. When you think about the reason why you are grateful for a particular thing, person or a situation, you will feel gratitude more deeply. Remember that the magic of the gratitude happens according to the degree. अब why क्यों लिखना है, हमको why लिखना है. हमको ऐसे नहीं बोलना कि सिर्फ थैंक यू फॉर माई जॉब, बट why you are thank you for the job. I'm thank you for my job because I'm getting so much of salary. I am grateful to my job because of that I'm learning new skills. I'm grateful for my job because of that I'm able to handhold my expenses. जब आप ये करना शुरू करते हो और उसमें फीलिंग लाना शुरू करते हो, रिमेंबर ही सेइंग कि व्हाई यू आर ग्रेटफुल, एंड रिमेंबर दैट द मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड हैपेंस अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ योर फीलिंग. जब आप दिल से ये फील करते हो, यार सच में मेरे पास काम तो है, किसी के पास तो काम भी नहीं है, किसी के पास जॉब भी नहीं है, किसी के पास ये रिलेशनशिप भी नहीं है. अगर आपके पास पार्टनर नहीं है, तो अगर आप ये ऐसा सोचते हो कि मेरे पास पार्टनर नहीं है, बट आप ऐसा सोचो कि किसी, अगर आपके पास पार्टनर है और वो आपके मन मुताबिक नहीं है, आप उसमें सिर्फ फ्लॉज ही देख रहे हो, तो ये ध्यान करो किसी किसी के पास पार्टनर नहीं है, राइट. तो यू थिंक अबाउट दैट. सो हियर आर सम आइडियाज, like here she's saying, this is the format she's giving you. I am truly blessed, you can write it down and take. I am truly blessed to have what, because and why. ये फॉर्मेट में हम काउंट योर ब्लेसिंग लिखेंगे. आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव जॉब, जो भी है, बिकॉज आपको ये वाई लिखना है. आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल
फॉर, आपके पास जो भी आपने ग्रेटफुल लिखना है उसके लिए, बिकॉज ये इसमें से आप जो भी चुनना चाहते हो ना, आप जो रिलेट करते हो। मैं यूजुअली ये थर्ड वाला लिखती हूँ, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर whatever it is. I am truly grateful for my lovely children because they are always there for my emotional support. इस तरीके से आप अपना gratitude, अपना count your blessings लिखोगे. With all my heart, thank you for what, because, and dash why. After you have finished making your list of 10 blessings, go back and read each one. जब आप 10 चीजों का count your blessings, ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये रोज करना है आपको। अगर आप मरते दम तक अबंडेंस चाहते हो तो आप मरते दम तक करोगे। ये वाला चैप्टर जो है ना, वो आपका इंश्योरेंस है। जैसे हमको लाइफ इंश्योरेंस मिलता है ना, वैसे पॉलिसी में लाइफ इंश्योरेंस मिलता है ना, वैसे तो ये आपकी LIC पॉलिसी है। So after you have finished making your list of 10 blessings, go back and read each one, either in your mind or out loud. And when you get to the end of each blessings, say the magic words 3 times. Thank you, thank you, thank you. And feel the gratitude for that blessings as you possibly can. तो आपको 10 gratitude लिखने हैं। उसके बाद आपको हर एक gratitude पढ़ के उसको दिल पे हाथ रख के फील करके, रीड करके, फिर उसको थैंक यू बोलना है कि आप सच में दिल से फील कर रहे हो कि आप इसके लिए शुक्रगुजार हो। आपके पास इतनी नियामतें हैं। टू हेल्प यू फील मोर ग्रैटिट्यूड, यू कैन बी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स, गॉड, स्पिरिट, गुडनेस, जो लाइफ, ग्रेटेस्ट सेल्फ और एनी कॉन्सेप्ट। आप अगर शिवा को मानते हो, विष्णु को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, वाहेगुरु को मानते हो, जीसस को मानते हो, साईं बाबा को मानते हो, गणपति को मानते हो, जिसको भी आप मानते हो, आप उनको भी कनेक्ट कर सकते हो कि आप ऐसे बोल सकते हो, आई एम ग्रेटफुल टू अल्लाह, आई एम ग्रेटफुल टू गणेश जी फॉर गिविंग मी दिस, बिकॉज ऑफ दैट आई एम एबल टू लिव दिस लाइफ। सो आई एम ग्रेटफुल टू अल्लाह, आई एम ग्रेटफुल टू Ganesh ji, because of you I am getting so much money which I am able to spend and buy or do my shopping. तो आप जिसके साथ कनेक्ट फील करते हो, आप उसको भी नाम भी दे सकते हो अगर आपको यूनिवर्स नहीं लिखना है तो। when you direct gratitude towards something or someone, you will feel it even more, and your gratitude will have even more power and create more magic. It's the reason why indigenous and ancient cultures chose symbols like the sun to direct their gratitude toward. हम सूर्य देवता को भी पानी चढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग, पहले के लोग सूर्य को भगवान मानते हैं। ओके, so they were simply using the physical symbols to represent the universal sources of goodness. क्योंकि कोई तो सिंबल चाहिए था ना जिसको आप फील कर सको कि यार ये हाँ भगवान है। एंड इन फोकसिंग ऑन दैट सिंबल दे फेल्ट मोर ग्रेटिट्यूड। तो आप जिस जो भी रिलीजियस से आप कनेक्ट करते हो, वो अल्लाह हो, खुदा हो, जीसस हो, वाहिगुरु हो, गणपति हो, जिससे भी आप कनेक्शन फील करते हो, शिवा हो, विष्णु हो, जिससे भी, आप उसके साथ में फील करके आप बोल के ग्रैटिट्यूड लिख सकते हो। So the practice of counting your blessings is so simple and powerful in altering your life that I want you to continue to add 10 more blessings to your list every day for the next 21 days. Sorry, 27 days. And you might think it could be difficult to find 10 things you're grateful for every day, but the more you think about it, the more you will realize how much you have been grateful for. Look closely at your life, and you have received and are continuing to receive so much each and every day that there is really so much to give thanks for. You could be grateful for your home, your family, your friends, and your work and your pets. You could be thankful for Vicky में session which Vicky में session which I'll call you. You can connect with me afterwards, huh? हाँ क्या? लोकेशन ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं तन भेजनी है तन भेजनी है।
Sorry, there was a call because my sister's son has come from Hyderabad, so he's coming to meet me with his family. So you could be grateful for your home, family, friends, your work, and your pets. You could be thankful for the sun, the water that you drink, the food you eat, and the air that you breathe. Without any of them, you wouldn't be alive. आप इसके लिए थैंक यू बोल सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आता किस चीज के लिए थैंक यू बोलना है. यू कुड बी ग्रेटफुल फॉर द ट्रीज, एनिमल्स, ओशंस, बर्ड्स, फ्लावर्स, प्लांट्स, ब्लू skies, rains, everything. You could be grateful for your senses, your eyes that you can see, your ears you can hear, your mouth that tastes, your nose that smell, and your skin that enables you to feel. You could be grateful for the legs you walk on, your hands that you use to do almost everything, your voice that enables you to express yourself and communicate with others. You could be, you could give thanks for your amazing immune system that keeps you well and all of your organs that maintain your body so that you can live. And what about the magnificence of your human mind, which no computer technology in the world can duplicate? तो आपका आपके पास इतना अच्छा ब्रेन है, आप उसके लिए थैंक यू बोल सकते हो. तो ये देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी थैंकफुल फॉर. शी इज सेइंग हियर इज the list of the subjects that will remind you of your major areas. You can look for the blessings to be grateful for. You can also add any subject you want depending on what is important to you at any time. यानी आप ये देखो कि आप कितना. पारस जी, अगर आपको आवाज नहीं आ रहा है ना तो आपका नेटवर्क का इश्यू हो सकता है. अदर्स आर एबल टू हियर मी. अक्षता मैम, मंजू मैम, मेरा आवाज आ रहा है आपको? आई एम ऑडिबल? यस मैम, आ रहा है, क्लियरली आ रहा है. Yes, we can hear you. ओके. सो पारस जी, आप देखिए आपके इसमें शायद प्रॉब्लम हो सकता है नेटवर्क में. So here it is saying that you can ask anything, like you can be grateful for, you can be grateful for anything what you want or what you have. बेसिकली जो आपके पास ऑलरेडी है, आप अगर उसके लिए ग्रेटफुल होना शुरू हो जाते हो. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हेल्थ एंड बॉडी है आपके पास, वर्क है, सक्सेस है, मनी है, रिलेशनशिप है, यू हैव पैशंस, यू हैव हॉबीज, हैप्पीनेस है, लव, लाइफ, नेचर, प्लैनेट, अर्थ, एयर, वाटर एंड द सन. मटीरियल गुड्स, आपके पास आज खाना है, आपको किसी ने वड़ा पाव खिला दिया, थैंक यू फॉर दैट. आज आपने किसी से बात कर ली, थैंक यू फॉर दैट. फोन पे आज किसी से कॉल पे बात कर ली. आज आपके ऑफिस में कोई मीटिंग बहुत अच्छी हो गई, थैंक यू फॉर दैट. तो पहले हम जब ये स्टार्ट करते हैं ना तो हम पास्ट में जाते हैं एंड वी स्टार्ट राइटिंग फॉर पास्ट. सो एनी सब्जेक्ट ऑफ योर चूजिंग, you should feel significantly better. You should feel significantly better and happier after each time you count your blessings. And how good you feel is your measure of how much gratitude you felt. The more gratitude you felt, the happier you feel, and the faster your life will change. Some days you will feel really happy quickly, and other days it may take longer. But as you continue to count your blessings every day, you will notice a bigger and bigger difference in the way you feel each time. And you will see your blessings magically multiply. यानी आप देखोगे कि धीरे धीरे जैसे आप पास्ट के लिए ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू करोगे. पहले हमारे मम्मी पापा ने हमको जो चीजें बचपन से दी है, राइट, हमको बचपन से जो चीजें मिली है, हमारे पास खाना था, हमारे पास कपड़े थे पहनने के लिए, हमारी फीस भरी गई थी, हमारे पास गरम ठंडे सब कपड़े लाए गए थे हमारे लिए. खाना पीना, उठना, रहने के लिए जगह थी, छत थी, खेलने के लिए साइकिल लाई गई थी, टॉयज थे. तो हमारे पास कितनी चीजें हैं जिसके लिए हम ब्लेसिंग्स लिखते हैं और या लिख सकते हैं. सो द मोमेंट यू स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल, यू विल स्टार्ट फीलिंग हैप्पी.
आप बचपन में दौड़ पाते थे, भाग पाते थे, खेल पाते थे, यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर दैट. सो सम डेज यू विल फील रियली क्विकली हैप्पी एंड सम डेज इट विल ऐसे होगा कि आपको जैसे जैसे आप आपकी ब्लेसिंग्स लिखना शुरू करोगे, यू विल सी दैट यू आर बिकमिंग हैप्पियर एंड हैप्पियर. और जिस दिन आप मुझे आके ये प्लेटफॉर्म पे ऐसे शेयर करोगे ना कि मैम मेरे अंदर में एक ऐसी अच्छी फीलिंग आना शुरू हो गई है कि आई हैव स्टार्टेड फीलिंग हैप्पी, that means you have done your practices correctly. बाकी चीजें तो बाद में अट्रैक्ट होगी, सबसे पहले हैप्पीनेस आएगी आपके मन में, आपकी फीलिंग्स चेंज होनी शुरू हो जाएगी, आपका माइंडसेट चेंज शुरू होना हो जाएगा. बट एज यू कंटिन्यू टू काउंट योर ब्लेसिंग्स एवरी डे, you will notice a bigger and bigger difference in the way you feel each time and the way you see your blessings magically multiply. So, magic reminder, make sure to read tomorrow's magical practice sometime today as you need to do something specific before begin. She's talking about tomorrow's practice. Now, tomorrow's practice says that you need to have a stone before I make you start writing. Okay? आपको कल के लिए एक स्टोन रखना है, ठीक है? Stone should be something which I'll just show you. Stone should be something which is really a stone, not artificial one. ठीक है? It should not be artificial one. It should be the real stone. Okay? आपका आर्टिफिशियल जो होते हैं ना स्टोन्स डेकोरेशन वाले, वो नहीं. आप रास्ते में जाते जाते कल बिफोर मॉर्निंग, मॉर्निंग ओनली आई एम टेलिंग यू नाउ ओनली, कलेक्टेड आपके हाथ में ऐसे आ जाना चाहिए वो स्टोन. ठीक है? आप ये स्टोन इतना साइज होना चाहिए कि उसको शार्प एजेस नहीं हो और आप उसको ऐसे हाथ में पकड़ सको. तो कल आपको सेशन में आने से पहले ये आपके पास लाके रखना है. सो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू योर ऑफिस और समथिंग, फाइंड इट आउट इन योर गार्डन और इन योर सोसाइटी गार्डन and keep it with you. Okay, if you, that is your, I keep it, we have to keep it near your bedside, so that is why I had to get up and get it for you. Okay, so now we are going to start writing gratitude. ठीक है? मैं तुमको प्रैक्टिसेस इसके लिए शुरू शुरू में करा रही हूँ ताकि आपको एक आदत आ जाए. सो टेक योर जर्नल. ओके, टेक योर जर्नल. Take your journal and start writing. We are going to write gratitude. How many of you remember that we wrote a gratitude day before yesterday? हमने gratitude लिखे थे day before yesterday for parents. Remember? Right? Yes, ma'am. So you're going to start writing gratitude again for parents first. ठीक है? Why you need to write gratitude for your parents? Who will tell me? Because parents are our source energy. Right. So I am truly grateful to my parents for bringing me into this world. Write it down.
So I am truly grateful to my daddy because I'm just going to take you today to 5-5 and then we'll start writing Count Your Blessings. To my daddy because he paid money for my delivery. I am truly grateful to my daddy because he paid my admission fee in school. I am truly grateful to my daddy because if I'm too fast, please let me know. Because he paid money for my uniform. I am truly grateful. किसी के मन में सवाल आ रहा है कि हमको क्यों लिखना है ये? अभी भी सवाल आ रहा है तो पूछो. You can write any of this format, like I'm truly blessed, I'm so happy and grateful, or I'm truly blessed. But for what? And you have to write because. Why you have to write because? आपको उसको 1 minute, I'll just take it to the gallery view. Yeah. So I am truly grateful to my daddy because he paid money for my school books. आप कितने भी बड़े हो गए हो, 50 साल के हो, 60 साल के हो, 70 साल के हो, बट जब तक हम हमारे मम्मी पापा को शुक्रिया नहीं करते हैं, हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ते हैं. नेक्स्ट, नाउ विल स्टार्ट राइटिंग फॉर मम्मी. आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माय मम्मी because you spent sleepless nights to take care of me when I cried. फील करो कि आपकी मम्मी ने आपके लिए इतना टाइम दिया, अपनी नींद गवाई और आपको टाइम दिया. कभी आज तक हमने उस चीज के लिए मम्मी को थैंक यू बोला? आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माय मम्मी. आप जो बोलते हो अम्मी, अम्मा, आप वो लिखोगे जिससे आपको कनेक्शन आता है, जो आप आपकी मम्मी को बोलते थे अब बोलते हो. आई हैव लॉस्ट बोथ माय पेरेंट्स, सो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माय मम्मी बिकॉज. आपको बिकॉज लिखना है हमेशा.
because you gave me your milk when I was hungry, even when you wanted to rest. Maybe your मम्मी को रेस्ट करना था, मम्मी की तबीयत अच्छी नहीं थी, but you were crying, but she got up and she fed you milk. बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए हमको थैंक यू बोलना है। हम बहुत कर्जदार है हमारे मम्मी पापा के, जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है। Focus on all the good things your parents did. Remove your focus from all the things which were not good in your life and only focus आपका वहां जाना चाहिए। I am truly grateful to my mummy because you massaged me when I had pain. I am truly grateful to my mummy because you bought warm clothes for me in winter season. आप जो भी आपको फील होता है आप वो भी लिख सकते हो। अगर आपको शुरू शुरू में नहीं फील होता है तो दैट इज व्हाई वी मेक यू राइट दिस। आई एम ग्रेटफुल टू माय मम्मी because you gave me gripe water when I had pain in my stomach, जब मेरे पेट में दुखता था, राइट? मम्मी ने आपको ग्राइप वाटर पिलाया होगा। If you are done, let me know. Keep your hands on your heart and feel आपके मम्मी पापा आपके सामने बैठे हैं। आप उनसे बात कर रहे हो। सो थैंक यू मम्मी पापा, आपने जो भी मेरे लिए किया है उसके लिए दिल से शुक्रिया। मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि आपने मेरे लिए आपका इतना टाइम दिया। आपने आपकी रातों की नींद गवाई और मुझे अपने गोद में लेके बैठे रहे। थैंक यू मम्मी पापा, आपने मुझे इस दुनिया में लाए। थैंक यू मेरे को हर उस टाइप का फूड और खाना देने के लिए जिससे मेरी सेहत अच्छी हुई। दिल से शुक्रिया उन सब चीजों का जो आपने बिना मांगे, बिना बोले मेरी हर भाषा को समझा और मुझे दे दिया। मुझे मांगना भी नहीं पड़ा, मेरे सिर्फ आप आवाज से जान लेते थे कि मुझे क्या चाहिए।
थैंक यू मम्मी पापा मुझे समझने के लिए। थैंक यू। Feel that feeling your parents are in front of you and you're really thanking them. Feel the feeling that they're blessing you. Keep your hands on your head and feel आपके parents आपको bless कर रहे, whether they are there in this world or they are not there. जब आप आंखें बंद करते हो हमेशा उनकी छवि आपकी आंखों के सामने होती है. So ask for their blessings and feel आपके मम्मी पापा आपको bless कर रहे हैं and you're receiving them and tell them thank you. Thank you, mommy. Thank you, daddy. Thank you for blessing me. मुझे पता है आपका हाथ हमेशा मेरे सर पे है. Thank you. Thank you. And put your hands down. Now we are going to write count your blessings. अब आप count your blessings किस चीज के लिए लिखोगे? हमारे पास्ट में जो जो चीजें थी हम उससे शुरू करते हैं. Count your blessings. ठीक है? आप लिखोगे I am truly. चलो आप लोग बताओ. मंजू मैम. Yes, ma'am. What can we Count. for 1 minute, ma'am. Yes, ma'am. Tell me. how can we write our blessings? Count your blessings. I am truly Count your blessings that we are blessed with like good. बचपन में पेरेंट्स ने हमारे लिए एजुकेशन किया. हम लोग ने बचपन से अच्छा खाया. Then we have a good house. Current जो है हमारे पास. Every day we are having good food. All these basic things से start करना है. very good. So start writing. आपके पास घर था छत Yes. और अभी भी छत है. तो just write I'm truly Correct. grateful to my house or home because Ma'am, can you repeat once more? सी आई सेड काउंट योर ब्लेसिंग्स में हम वो लिखते हैं या तो हम पास्ट का लिखते हैं या तो हम ये लिखते हैं कि हमारे पास जो अभी है. ठीक है? आप काउंट योर ब्लेसिंग्स में वो भी लिख सकते हो कि आपने कल पूरा दिन का आपने स्कैन किया कि कल पूरा दिन मैंने क्या किया, या आज अभी हम रात में लिख रहे हैं तो आज पूरा दिन सुबह से आपने क्या क्या किया. मैं सुबह में अलाइव उठी, मेरी सांसें चल रही थी, उसके लिए थैंक यू. मेरे पास वॉशरूम में पानी था, उसके लिए थैंक यू. मैं ब्रश कर पाई, उसके लिए थैंक यू. मेरे पास नाश्ता था, चाय था, उसके लिए थैंक यू. ओके, आपके पास पहनने के लिए कपड़े थे, उसके लिए थैंक यू. सो काउंट योर ब्लेसिंग्स में इधर यू कैन डू ऑफ योर पास्ट और इधर यू कैन डू ऑफ योर करंट स्कैनिंग. ओके, जो भी आप कर रहे हो. तो ये हम ये लिखेंगे. हम अभी स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास छत है, राइट, घर है. So I'm truly grateful to my house or home, जो भी आपको लिखना है. Because, I repeat, I'm truly grateful to my house because I am able to come and relax freely from my office. So when you come back from your office, या आप नहीं भी ऑफिस जाते हो तो आप पूरा घर में आप आराम कर पाते हो. तो बी थैंकफुल फॉर दैट. I am truly grateful to my washroom. ये प्रैक्टिसेस हम उसके लिए मॉर्निंग में बोलते हैं कि जब आप सुबह में उठते हो और ये प्रैक्टिसेस करते हो और लिखते हो
You start your day with a positive note because you're being thankful for everything, right? You are being thankful for everything. So I'm truly grateful to my washroom because I have water in the tap for 24 hours. ये नियामत नहीं है कि अगर आप नल खोलते और आपके पास पानी होता है, सोचो एक दिन पानी नहीं आता है तो कितना टेंशन हो जाता है। भर के रखना पड़ेगा, ये मैनेज करना पड़ेगा, वो मैनेज करना पड़ेगा। सो बी थैंकफुल फॉर ऑल द स्मॉलेस्ट थिंग्स यू हैव। दीज आर नॉट स्मॉलेस्ट थिंग्स। सोचो अगर नेचर में पानी नहीं रहता तो बी थैंकफुल फॉर दैट। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल। आपके वॉशरूम में गीजर है तो आप उसके लिए लिखो, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माई गीजर इन माई वॉशरूम because of it I get hot water when it is cold. I am truly grateful to the bed because आपके रूम में बेड है तो आप उसके लिए थैंक यू लिख सकते हो कि आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माई बेड बिकॉज आई एम एबल टू स्लीप पीसफुली ऑन इट। किसी किसी के पास तो वो भी नहीं है, कोई कोई किसी को रास्ते पे सोना पड़ता है। तो जो भी हमारे पास छोटी छोटी चीजें हैं, आप उसके लिए थैंक यू हो जाओ। सो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू द बेड शीट बिकॉज ऑफ इट आई गेट warmth every night. I am truly grateful to the mirror in my room. अभी आपका करंटली रूम में ही देख लो, फिर हम फूड के लिए आएंगे। सो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू द मिरर इन माई रूम बिकॉज आई एम able to dress up and look beautiful because of it. I am truly grateful to the food I ate in my lunch because it satisfied my hunger. Are you all writing, everyone? Because I can't see the cameras open, so I don't know whether you all are really writing. Hello? No? So shall I end the session? From tomorrow, I want the cameras to be opened.
Then only I'll get the energy to take the session. So from tomorrow, please keep your cameras open. Are you writing, everyone? Yes, Shweta ji. From tomorrow, please see that you are keeping your cameras open. I will just make you write 2 more and then we will finish it. So I am truly grateful to the ब्रेकफास्ट में आपने क्या खाया वो लिखो. Mention the name of the food you ate. Because I felt happy after eating it. आपने जो भी खाया उसके बारे में लिखो. अब मुझे नहीं पता आपने क्या खाया आज सुबह में. I am truly. आपके पास अगर खाना था, 1 गिलास पानी था, आपके पास पीने के लिए चाय थी, आपके पास पहनने के लिए कपड़े थे, write it down. Gratitude for that. Truly grateful to the delicious egg pulao, which satisfied my taste buds. I am truly grateful to my body for helping me write my gratitude. Done? 10 you wrote. This is how basically you're going to write gratitude early in the morning. Try to make it a habit कि आप morning में ही लिखो, because when you start your day with it takes hardly 10 minutes to write 10, at least 10. See, हम करीब करते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, बट रिमेंबर 24 आवर्स एवरीवन हैज. 24 आवर्स सबके पास है. और उसी 24 आवर्स में जब आप अपने लिए खुद के माइंड को बोलना शुरू करते हो, यस यार 10 मिनट तो मैं अपने लिए निकाल ही सकती हूँ, एंड यू मेक इट अ पॉइंट टू राइट. व्हेन यू ट्रेन योर माइंड, जब आपके ब्रेन को आप रिवायर कर लेते हो बोल बोल के कि यस आई कैन डू इट, I can write it, I can do this practices every day, I can put it into my schedule, you will see it happens. Because जब आप schedule बनाते हो आपका खुद का, और अगर आप नहीं बनाते हो, then I'm sorry, you should really make a schedule for yourself. Because जब आप schedule बनाते हो, your mind is set for the whole day's plan. कि आप मुझे क्या करना है, आप आगे मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे क्या करना है, खाना बनाना है, इसके बाद मुझे ब्रेकफास्ट, इतने टाइम तक मेरा ब्रेकफास्ट बन के हो जाना चाहिए, इसके बाद मेरा टिफिन का हो जाना चाहिए, ताकि अब मैं टिफिन पैक करके इस टाइम तक मैं निकल सकूं. तो इफ योर माइंड इज प्रिपेयर्ड विद दैट, योर थिंग्स गो ऑन टाइम. तो आप धीरे धीरे अगर आप इस प्रैक्टिस को लाते हो, आप यू विल सी द रिजल्ट्स. आज तो अभी तो 2-3 दिन है, अभी तो जस्ट शुरुआत है. So when you start doing this practices, you will see the difference in your life. आपको जो चीजें चाहिए वो आपकी लाइफ में खुद ही अपीयर होनी शुरू हो जाएगी, बिकॉज यू आर बीइंग थैंकफुल. आपके पास जॉब है उसके लिए थैंक यू, आपके पास खाना है, आपके पास घर है, आपके पास बच्चे हैं. You became a mother because of the children, so be thankful for that.
राइट? आपके पास अच्छे स्किल्स है कि आप ऑफिस में काम कर पाते हो, बी थैंकफुल फॉर दैट. I am capable because I have those skills. I am getting that experience in my job, so I'm thankful for that. हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं और हम बहुत कर्जदार हैं कि हमने अभी तक बहुत सारी चीजों को हमने ग्रेटिट्यूड नहीं लिखा है. Okay? And if you have any other question, you can ask me. You can put it on my personal chat also if you want, and ask me the question if you don't understand. So shall we wind up? Any question coming from your side? Today everyone's cameras are closed, for which I'm not at all happy, because I would prefer that the cameras should be on, and so that I have that energy to work on. So just let's wind up today. Yeah. So if no other question is coming to your mind, just let's wind up. So thank you all for joining. God bless you all. Thank you, ma'am. Thank you for joining. God bless you all. Thank you, ma'am. Have a peaceful evening and sleep peacefully. Okay. Talk to the universe and then sleep. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Yeah. Thank you.